what we need to provide. So today's webinar will be in two parts. Part one will be a presentation by Ms. Arshia. She is an intern. We had given her an assignment on this topic, status of social security, and she has completed that assignment, and today she will be presenting her assignment to us. So Ms. Arshia is a 10th standard student, and we are encouraging, by giving Arshia the chance to come and make a presentation, we are encouraging younger generation, the youth, to take interest in the civil society activities as well as the development work. And the second part of the webinar shall be discussion on this topic. The issue is our activists, they are working day and night from years together in the dangerous situations. COVID was one of the situations how they faced threat to their lives, and many of our activists we lost. And there are activists, there are civil societies who are working for changing behaviors of the people and facing threat to their lives as opposition, cultural opposition by the leaders and locals. They are facing threat. And thirdly, they are also working in difficult geographical situations and climates. And this leads to threat to their lives, and their families are also suffering. So this is the scenario under which we have to think about how to provide protection and some social security for these people. Thank you. So may I request Harshji to start the discussion, then I'll request Ms. Arshia to make the presentation. Sir. Good afternoon, namaste. साथियों, हम लोग मिक्स भाषा का उपयोग करेंगे. We speak Hindi as well as English. शवीन जी ने इंग्लिश का कोटा पहले इस्तेमाल कर लिया है, तो मैं थोड़ा हिंदी में बता दूं. See, today's webinar जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग हमने इसका फॉर्मेट बनाया है. इसलिए बनाया है कि आज की जो यंग जनरेशन है, जो बच्चे हैं आजकल, वो बच्चे छोटी उम्र में ही दे आर क्वाइट सोशली कॉन्शियस. आपने देखा होगा कि स्कूलों में ही आजकल कैंपेनिंग हो जाती है, और दिल्ली में खासकर एयर पोल्यूशन को लेकर जितनी कैंपेनिंग स्कूलों में हुई है, उसी का असर देखने को मिला कि कैसे लोगों का बिहेवियर चेंज हुआ. इसी दौरान हमारी चर्चा अक्सर ये होती रहती है कि हाउ मच द यंग जनरेशन इज अवेयर अबाउट द वॉलंटरी सेक्टर. कई बार हमने ये देखा है that we engage young population, young kids, students as interns in our institutions, but there is no long-term vision related to that. Most of the time we consider young students as a stopgap arrangement or a free labor available to write some reports. Similarly, बच्चे भी आते हैं, वो ये सोच के आते हैं कि भाई हम लोग we are there to do some small project which we add to our CV, and eventually it will help us in getting admission somewhere else. But as a voluntary organization, voluntary sector, we have always tried that we should have an active participation of young generation in deciding the course of the social sector in this country, the social issues in this country. So Arshia, जिनको हम आज आपके सामने पेश कर रहे हैं, she is class 10 student. She is a small child. I can say that in front of all of you, she doesn't have experience, but I will say that she has a wisdom. Wisdom उम्र के साथ आती है, लेकिन इस बच्चे ने काफी अच्छा एक स्टडी किया है. And we gave her one task कि आप स्टडी करके बताओ कि grassroots level पे what are the challenges which are faced by voluntary organizations as well as people there, and how they address that. Objective ये नहीं है कि हम ये जाने के स्टडी कितनी जबरदस्त हुई है, या लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि how children today perceive this whole sector. तो ये फर्स्ट प्रेजेंटेशन हम आज कर रहे हैं. दूसरी जो प्रेजेंटेशन की बात शबीन जी कर रही थी, you must have seen whenever there is crisis, our sector unites and becomes very active. क्राइसिस चला जाता है तो हम उसको भूल जाते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ. Everything is under carpet. If you remember when लोकपाल बिल आया था, we were so active after that. उसके बाद सब चुप. इसी तरीके से अभी कोविड होके गुजरा है, and we have seen that during the second wave of COVID, how disastrous it was for the whole country and also for the whole world.
And at that level, there was so much of concern in our country कि लोगों ने किस तरीके से अपनी लोगों की जानें चली गई, एक्टिविस्ट जो कि फ्रंट लाइन पे लोगों की सेवा कर रहे थे, they also lost their lives. At that stage, lot of debate was done by मानी ने डेटा कलेक्ट किया और रियलाइज किया कि कम से कम 350 एक्टिविस्ट जो हमारे सेक्टर के थे, वो लोगों को दवाई देने में, खाना देने में, उनको ऑक्सीजन देने में, यहाँ तक के अंतिम संस्कार करने में इतने लोगों की जानें गई. But then we realized that most of the people at grassroots level do not have any social security. काफी आपके साथी उस समय इन्वॉल्व थे वानी के साथ. हम लोगों ने स्टडी की, मैं देख रहा हूँ दत्ता पाटिल है, मीनाक्षी है, काफी लोग हैं. जब हम लोगों ने स्टडी में ये निकला कि क्या करना चाहिए, वो कार्यक्रम उस समय बड़े जोर शोर से शुरू हुआ. एंड वी वर थैंकफुल कि आई वॉलंटियर और गिव इंडिया ने करीब 50 से ज्यादा लोगों को फाइनेंशियल एड दिया, उनके परिवारों को जिन लोगों की जाने गई थी. उसके बाद सरकार ने वो पैसे देने शुरू कर दिए. मामला आया गया हो गया, गायब हो गया, किसी की चर्चा नहीं हुई. तो हमने सोचा कि आज हम वो चर्चा भी करेंगे और इस स्टडी के साथ ही उसको जोड़ के देखेंगे. तो ये आज की स्टडी है, मैं आपको इनवाइट करता हूँ. और इन द एंड ऑफ टुडेज वेबिनार वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर सजेशन कि किस तरीके से हमारे एज अ वॉलंटरी सेक्टर वी शुड इंगेज young generation so that there is a relationship of mutual learning. तो ये पहले सेक्शन का आउटकम हम लोग देख रहे हैं. दूसरे सेक्शन का आउटकम हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से जो अग्नि प्रज्वलित हुई है, for the benefit of the people who work at grassroots level, how to take it forward. We should not lose the focus of those people who have lost their life in serving the country as well as serving the sector. So thank you, and Shabinji, please take it forward. Thank you. Now I request Miss Arshi. Arshi, just a minute. I am introducing you. Your profile will be on the screen. Then you can start. This is Miss Arshia Tanvi. She is 10th standard student. And you can see she is an academic rank holder. And she has been a debater. She has won many awards and rewards for that. She is a Kathak dancer, and most interesting thing is she knows Spanish, she knows Japanese, Assami, and Chinese too. This is what impresses, and this is what shows how much interest she takes in social activities and hard-working students. My best wishes to you, Arshi. Now I will request you to make your presentation. Thank you, ma'am. And I'll Can just share share your my screen. screen for the presentation. Rights have been given to you. Yes. Ma'am, I hope the screen is visible. Yes, yes. Respected Harsh Jaitley, sir, Dr. Shabeen ma'am, senior officials of Vani, and other distinguished guests, a very good afternoon to all. Thank you for giving me the opportunity to present the status of social security among grassroots activists, constraints, and scope. Based on my limited understanding and the availability of literatures, I will try to be very precise yet focused so that an effective deliberation can take us through a positive direction. Here, I would like to draw the attention of the audience to certain facts which lay the foundation of this study. We have to be mindful that we are living in an imperfect and imbalanced world. In the last few decades, there has been a significant growth of business driven by cutting-edge technology. The growth process has created a lot of distortions in the socio-environmental ecosystem. It has created a lot of divergence among the countries, among the regions, and of course, among different sections of society. It has also led to the emergence of several global companies, MNCs, TNCs, being larger than many nation states in terms of turnover. All these have resulted in humanity facing imminent challenges: climate change, COVID-19, groundwater shortage, resource scarcity, among many others. Given this scenario, an interdependent world can survive and thrive. Humans can coexist with nature side by side only if everyone behaves responsibly and is accountable to each other. In the recent times, there has been a paradigm shift in the public policy. Globally, policies
are directed towards inclusive and sustainable development. Some of the recent emerging trends are changing business philosophy from shareholders to stakeholders, access to healthy environment declared as human rights by the UNHRC. India has also set many targets for itself, among which is the goal of achieving a $5 trillion economy by 2025, sustainable development goals by 2030, net zero carbon neutrality by 2070. A collective responsibility of government, businesses, as well as individual citizens is an absolute necessity. Here, NGOs, CSOs, grassroots organizations provide a common platform to connect policymakers, businesses, and society to achieve the global agenda of sustainable development and to ensure the world to be a better living place. It is in this direction that the study began, to understand the nature and functioning of grassroots organizations, to further study the global trends regarding the social security for these organizations, to map the existing social inclusion schemes in India that can be leveraged by these activists, and to identify the key challenges and the way forward, the interventions required to mitigate such challenges. As we all know, India is a country of great self-respect. Giving back or charity to the needy or society is implicit in Indian culture. It has been imbibed as the way of life since ages. Therefore, it is of no surprise that India has a very strong voluntary sector, driven by self-regulations and supplemented by rules framed by the government. As per the NGO Darpan portal of Niti Aayog, there are 1,64,282 active NGOs in India as of April 2023. These are non-profit or voluntary citizens groups organized on a local, national, or international level. Grassroots organizations is a commonly used term these days, but more often than not, the actual meaning of the name is unknown. As far as the nature and function of grassroots organizations is concerned, there is no formal definition. From the relevant literatures, it appears that these are groups of like-minded local people voluntarily coming together to pursue some common problems pertaining to their families, communities, and societies without reciprocating any return. In the recent past, there has been a significant rise in the numbers of grassroots organizations worldwide. Their role was very prominent during the COVID-19 crisis management period. Not only are they gaining massive support from the civilians or the ordinary people, but many large bodies, such as the United Nations High Commission for Refugees, are recognizing and supporting their causes. During COVID-19, they have generously contributed and supplemented the efforts of the government and public authorities in the rescue, relief, and rehabilitation initiatives by putting their and their loved ones' lives at risk. Therefore, it becomes the responsibility of the nation and other formal organizations to recognize this generosity and priceless contribution to the betterment of society and address their concerns by extending social security measures such as livelihood, access to healthcare services, education and training, life insurance, family supports, etc. However, there are many challenges in ensuring an effective and uniform social security system in India, given the size and diversity of population and the geographical area of the country. One size cannot fit for all. Some of these problems are the incidence and severity of deprivation is very high. The development of institutional setup and formal security systems is at a very low level. There is limited or inappropriate coverage of public support due to resource constraints. There is the lack of formal recognition of grassroots organizations' existence and the contributions made on various occasions. There is the lack of access to information and asymmetry of information as compared to their peers being other NGOs, CSOs, etc. There is also the lack of bargaining power due to the relative powerlessness of the members. Grassroots organizations face particular challenges when dealing with state authorities. There is the lack of technical skills and the lack of funding or financing the activities of grassroots organizations. The engagement of volunteers is not without costs. For instance, opportunity costs, that is, attending public meetings instead of participating in paid work, travel time, and costs of transport are deterrents to participation. Grassroots organizations should not be seen as free labor to replace the need for public data. There is also the problem of volunteers being less in numbers than required, and the volunteers, due to being illiterate or unskilled, were level, being unable to present their own interests, among many other problems.
Next, I have made an analysis of the existing social security provisions of India, which broadly reflects the understated trends and patterns. There is an increasing trend of government spending on social services over the years. It has increased from rupees 12.8 lakh crore in the financial year 2019 to 21.3 lakh crore in FY 2023. There has also been an increase in overall health expenditure in the aftermath of COVID-19. There has been customized social protection schemes formulated for different sections of society, the elderly, the girl child, the kisan, etc. Special focus was given on aspirational districts. Transformation of welfare through technology, the JAM Trinity, Jan Dhan, Aadhaar and Mobile, DBT, One Nation, One Ration Card, etc. I wanted to flag some of these social security schemes which are already under implementation. These have been broadly classified into different categories related to healthcare infrastructure, social protection for the monsoon season or during natural disasters, social security initiatives for India's aspiring rural economy, transformation of aspirational districts program, and progressing labor reforms. While the members of grassroots organizations can leverage the aforementioned existing social inclusion schemes at an individual capacity or at unit level, the undermentioned initiatives as a pursuit of public policy are paramount to actively engage these organizations for greater social cause. First and foremost, the government's commitment to support activities of grassroots organizations is needed. This can be in the form of formal recognition of grassroots organizations and bringing them into the formal organizational structure. For instance, in Austria, these grassroots organizations are formally recognized as social partnerships. In the Czech Republic, they are called mutually beneficial volunteering or publicly beneficial volunteering. Similarly, in Hungary, they're called the National Volunteering Center Foundation. There should also be the provision for funding or financing the activities of these grassroots organizations by concerned government ministries, departments, etc., through the creation of a dedicated fund or corpus by the government, or through public-private partnership, through pooling of resources. The Hungarian government established the National Civil Fund for financing the activities of its voluntary sector. There can also be project-based funding with grants to cover operational costs, including basic activities and overheads like salaries and office expenses. The current taxation regime is also not adequate to motivate potential donors. There should be systematic support from the state, including changes in legislation related to the state grants. There should be training and capacity building of office bearers or members for building confidence and harnessing efficiency. A strong voice and cooperation among grassroots organizations should be encouraged. A redistributive cooperation model to bring synergies and solidarity among big CSOs, public institutions, and small grassroots initiatives is needed. Mechanisms should be developed for dissemination of achievements and good practices from the grassroots initiatives and their mainstreaming across the country. By bringing general public, political executives, policymakers, and local administration to a roundtable discussion with the CSOs, we can help them to be accepted as a professional partner in the decision-making process. We should also appreciate the grassroots initiatives and their contribution. An institutional framework such as panel of experts or think tank may be created who can become the mouthpiece and advocate the grassroots interests. Dear friends, with great power comes great responsibility. Let us all resolve to work together for Sabka Saath, Sabka Vikas. Let us do something extraordinary for the ordinary. तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, एक सुनहरे भारत, एक श्रेष्ठ भारत की ओर. Namaskar. Excellent. You were very confident and the content is also very good. Thank you so much. Keep it up. You have a very long way to go. You have to do service to the society now. Any question? You have started. Yes. Thank you so much, ma'am. From the logos. Yeah. Now from the people participating, would you like to ask some questions to Arshia? Any doubts or any simple questions? Any questions, please? Sir, आप ठीक. कोई सवाल लोगों का, कुछ जानकारी? देखिए
ये actually the presentation is very important. The content is not that important for us. The more importance is the interest of young generation in understanding the sector. I think जैसे हम लोग देख रहे हैं हेमल जी हैं, हेमल जी works a lot with young kids in इंदौर और उसके आसपास. I think these are the things like जैसे आपने इस स्टडी में I saw that in study में जैसे हमने देखा कि Arshia has raised very important issues which we have been struggling for that. The issue she identified actually हमने इसको इस स्टडी में हमने कोई अर्शिया को मेरे को लगता है कि हमने उसको ये नहीं कहा था कि ये हमारी कहानी है ये तुम लिखो. She herself did literature survey and understood it and wrote what she wanted to tell. हाँ, क्योंकि इसमें हमने देखा कि what issues she identified are very important. जैसे for example इन्होंने बताया कि awareness of people, that when people are aware at the grassroots level, half of war is won. She identified the question of resources at that level. ये definitely हम सब जानते हैं that resources are major challenge, and we observed that thing during COVID mitigation crisis also. कि जो हमारे देश में कई बार जो समस्या इतनी व्यापक हो जाती है, वहाँ पे resources कम होने की वजह से we need lot of innovations. So I think that innovations come from the people who are actually facing the issue at the field. उसमें कोई बड़ी डिग्री काम नहीं आती, उसमें कोई बड़े फ्रेमवर्क काम नहीं आते हैं, लेकिन जो लोग उन चीजों को झेलते हैं, जो समझते हैं, they come out with the innovation. And she very rightly talk about the need of something like a think tank. Yes, definitely, Arshia, your finding is very important. Is that same जो वानी की strategy review भी यही finding आई है कि what we lack in this sector is lack of information. लोगों को पता नहीं है कि हमारा सेक्टर किस किस challenges में किस तरीके से काम करता है और क्या क्या इसकी achievements हैं. What we write is most of the time for the people who are not the common people, who can be donors, who can be people to whom we report. But I think the very important point here is, so I request before we move to next session, next part of the conversation, if there is any point, any observation from any of member, आप अपनी बातें रखिए और I think आपके बोलने से, आपकी बातें करने से अर्शिया का हौसला बढ़ेगा, इसका हौसला बढ़ेगा तो यंग जनरेशन का हौसला बढ़ेगा और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में और इनके जैसे बच्चे हर लेवल में संस्थाओं के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि कहीं भी ये जाएं जीवन में, whether they become IAS officer, engineers, doctors, management experts, कहीं भी जाएं, जो sensitivity issues की हम लोग दे सकते हैं इस लेवल पे, that will help them in their professional career later on. So please, we welcome if there is any observation, any suggestions. One good thing, one thing she has indicated that the formalization of this non-profit sector, and she has cited the examples of the European countries, how the government has formalized and helped the non-profit sector or the voluntary sector. So that is a good opener for many of us. Yeah. Yeah, thank you. Great. Say again, Kadeshwar ji. Very nice. Any other? Jaswant ji, our board member. So I don't have much to say, but I really appreciate Arshia's efforts to put on this, all the aspects in a presentation. Only thing I wanted to add is that I have been sensitizing my son since I started working in the development sector about various things, like about special children. Even when he has started growing up now, I speak often about LGBTQ communities so that, he's sensitized enough to take care of the aspects. He should not insult them. He should not, harm them. Those kind of things, certainly I am sensitizing him. But this aspect, I think it's something very good, which I have come to know today. I should start interacting with him about more about the NGO sector so that he gets interested into that. Thank you. Thank you, Jaswant ji. बोलना चाह रहे अजहर जी. थैंक यू सर. बहुत ही अच्छा मतलब प्रेजेंटेशन था
और अप्रिशिएबल है आने वाले समय के लिए भी, क्योंकि जो हमने खुद झेला है ड्यूरिंग कोविड, 2 स्टाफ हमारे उसमें चले गए और मैं भी इफेक्टिव था। वानी ने भी मेरी श्रद्धांजलि सभा के लिए आयोजन कर दिया था, तो बाद में बताना पड़ा कि मैं अभी अलाइव हूँ। तो ये प्रोसेस बढ़िया है। साथ ही सर ये सुझाव देना था कि जो डोनर एजेंसीज हैं, अगर वो किसी तरह का प्रोजेक्ट भी देती है तो उसमें भी सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड बजट का भी प्रावधान रखें स्टाफ के साथ। करेक्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई साथी? हर्ष जी, सॉरी मैं नेटवर्क के कारण इनका प्रेजेंटेशन मिस कर गई, बट मुझे जहाँ तक लास्ट वर्ड अर्शिया के समझ में आए कि उन्होंने कुछ अपना एक नया इनोवेशन प्रेजेंट किया था, सो डेफिनेटली वो प्रेजेंटेशन मैं आपसे बाद में लेकर के उसको समझूंगी। बट यहाँ मैं जरूर कहना चाहूंगी कि जैसे डिस्कशन में मुझे लग रहा है कि ये टॉपिक डेफिनेटली हाउ टू कोप अप विथ सिचुएशन हम लोगों ने जो कोविड में या अभी फील्ड में डील कर रहे हैं, उसी के ऊपर इनका प्रेजेंटेशन होगा। तो डेफिनेटली अर्शिया इस तरीके के इनोवेशन की हमें यंग जनरेशन से बहुत बहुत जरूरत है कि वो इन सब चीजों को समझे, क्योंकि कोई भी प्रपोजल बनाना या कोई भी प्रोजेक्ट बनाना और उसको एग्जीक्यूट करना फील्ड लेवल पे बहुत डिफरेंस होता है। हमने भी अपनी स्टडीज में जो पढ़ा था, मुझे याद है कि मुझे बहुत शौक था कि जेल में जाकर के कैदियों की, जो महिला कैदी है वो क्यों बनती है, उसकी स्टडी करना। तो कॉलेज टाइम में मैंने वो जाकर के जब स्टडी की, तो जो पहले से माइंडसेट था वो और वहां जाकर के जो उनके रीजंस मुझे मालूम पड़े, उसमें बहुत डिफरेंस था। सेम आज 20-25 सालों से मैं इस फील्ड में काम कर रही हूँ, तो कोविड के टाइम जो हमारे सामने चैलेंजेस आए हैं, उन चैलेंजेस के बाद में जो हमें अपॉर्चुनिटी समझ में आती है वो यही है कि हमें आज में टेक्नोलॉजी के साथ में हमें सारे लोगों को साथ में लेकर के और फील्ड में अपनी एक मजबूत प्रेजेंस के साथ में काम करना बहुत जरूरी है। तो डेफिनेटली मैंने आपका प्रेजेंटेशन नेटवर्क नहीं होने से मिस किया, बट मैं उसको जरूर बाद में हर्ष जी से ले करके देखूंगी। बट मेरा सजेशन यही है कि इस तरीके से हम लोग कुछ इनोवेटिव काम जरूर करें। हमने भी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोड्यूसर कंपनी रजिस्टर्ड की है, बट चैलेंजेस बहुत है। उसके चैलेंजेस अलग लेवल पे है, एनजीओ के चैलेंजेस अलग लेवल पे है, बट ऑब्जेक्टिव एजेंडा हम लोग का सबका यही है कि हमें ग्राउंड लेवल को नहीं भूलना है, हमें सोसाइटी के लिए काम करना है। थैंक यू हिमेल जी। मेरा एक सवाल है अर्शिया, आपको सुनाई दे रहा है? यस सर। हाँ अर्शिया, मेरा पहला सवाल ये है कि जैसे आपने ये इंटर्न की, जिस दिन मेरे को आपका सीवी मिला था, सो आई हैड लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि इतने छोटे बच्चे को इंगेज किया जाए कि नहीं किया जाए, क्योंकि कई बार हमारे दिमाग में रहता है कि बच्चों को ऐसे काम में एंगेज, बिकॉज समटाइम आवर माइंडसेट सेज आर वी क्रिएटिंग सम सॉर्ट ऑफ अ चाइल्ड लेबर और समथिंग। लेकिन मेरे साथियों ने मेरे से कहा कि नहीं, हमको देखना चाहिए, बिकॉज आज की तारीख में बच्चों के पास देयर इज लॉट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, और है ना, बच्चों के पास बहुत इंफॉर्मेशन है, लेकिन अगर हम उनकी एनर्जी, उनकी नॉलेज, उनकी क्यूरियोसिटी सही डायरेक्शन में लगा सकें, तो इसके लिए देश को फायदा होगा, समाज को फायदा होगा और सेक्टर को फायदा होगा। तो मेरा प्रश्न ये है कि आपको क्या लगता है कि जैसे बच्चों को इस तरह के छोटी रिसर्च में और इंटरेक्शंस में इन्वॉल्व करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्योंकि आप क्लास 10th की हैं, 10th बहुत छोटी क्लास होती है। तो दूसरा मेरा सवाल ये है कि बच्चों को टेक्नोलॉजी का फियर नहीं होता है, ये मैंने ऑब्जर्व किया अपने खुद के बच्चों के साथ डील करके। दे आर वेरी क्रिएटिव, सो डू यू थिंक दैट किड्स कैन बी ए गुड रिसोर्स फॉर द सेक्टर, जहाँ पे वो इनोवेटिव तरीके से टेक्नोलॉजी में सपोर्ट कर सकेंगे? दत्ता जी बोल। हाँ, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आर्शिया ने बहुत बढ़िया तरीके से प्रेजेंटेशन किया और सही मायने में बहुत तालियां होनी चाहिए इनके लिए, इतने छोटे उम्र में इतना अच्छा एनालिसिस भी है। लेकिन मुझे पता नहीं कि कोई जो ग्रास रूट लेवल पर ऑर्गेनाइजेशंस है, उनके पास कोई ग्रास रूट स्टाफ के संदर्भ में कुछ सोशल सिक्योरिटी का कुछ पैकेज है क्या, कुछ अलग से स्कीम है क्या? इसके बारे में आपने जो स्टडी किया उसके अंदर कुछ ये जगह है क्या?
एक पूछना चाहता हूँ। बहुत बार हमने ये भी देखा है कि गवर्नमेंट सपोर्टेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कि चाइल्ड लाइन प्रोजेक्ट है, वो चाइल्ड लाइन में काम करने वाले ग्रासरूट कार्यकर्ता को सिर्फ 8,000 की तनख्वाह देते हैं, महीना मासिक 8,000 रुपया। अभी 8,000 रुपया में किस प्रकार का सोशल सिक्योरिटी और किस प्रकार का सिक्योरिटी भी होगा मुझे मालूम नहीं है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? पीपीएफ नाम का जो एक सुविधा है, उस सुविधा के बाजू में से सुविधा को लेकर हम जा सकते हैं क्या, ये भी थोड़ा सा देखना चाहिए मुझे लगता है। हाउ कैन वी निगोशिएट विद आवर फंडिंग पार्टनर्स एंड मेक ए स्पेशल फंड फॉर सोशल सिक्योरिटी? हर एक संस्था के पास अलग अलग प्रकार के हम फंड्स तैयार करते हैं, तो इस प्रकार का एक सोशल सिक्योरिटी फंड, ऐसा कुछ फंड निर्माण कर सकते हैं क्या? प्रधानमंत्री के एक इंश्योरेंस स्कीम है कुछ, उसका मुझे याद नहीं आ रहा है नाम, लेकिन वो हम सारे हमारे ग्रासरूट कार्यकर्ताओं के लिए वो कर सकते हैं क्या, वो भी एक देखना है। असल में क्या है कि आजकल सीएसओ को ही एनेबलिंग एनवायरनमेंट नहीं है, तो सीएसओ के ग्रासरूट कार्यकर्ता को किस प्रकार का एनवायरनमेंट होगा, ये थोड़ा सा बहुत चिंताजनक है, चिंता करने के जैसा है। And surely government should start some national level program for social security to the workers working at the grassroots level in the NGOs. जो 1 लाख कुछ हजार नीति आयोग के अनुसार जो आंकड़ा आपने बताया, क्या इन सारी संस्थाओं के साथ काम करने वाले ग्रासरूट कार्यकर्ताओं के संदर्भ में इस प्रकार का कोई प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं क्या? ऐसा कुछ लॉबिंग करना चाहिए, एडवोकेसी करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू। थैंक यू दत्ता भाई। के सवालों का उत्तर अर्शिया तो नहीं दे पाएगी, बिकॉज दैट वाज नॉट पार्ट ऑफ हर स्टडी। वो करती तो बेचारी बेहोश हो जाती। सर मैंने भी जितना रिसर्च किया था, इट वाज अ वेरी अनटच्ड टॉपिक। मैंने जितना रिसर्च किया था, मुझे कुछ ऐसा नहीं मिला था कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई सोशल सिक्योरिटी सिस्टम ऑलरेडी है। तो मैंने जो, मेरे हिसाब से मेन प्रॉब्लम थी कि कोई फॉर्मल रिकग्निशन ही नहीं है। जब तक फॉर्मल रिकग्निशन नहीं होगी गवर्नमेंट से, देयर कैन बी नो स्कीम्स फॉर्मुलेटेड। सो आई फील लाइक दैट्स द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस। यस, वेरी नाइस। अच्छा, हम लोग अभी सेकंड पार्ट में मूव करते हैं अपने वेबिनार का। और अर्शिया को ये इन्फॉर्म करना था कि दिस रिकॉर्डिंग विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। वी विल बी सेंडिंग यू द लिंक एंड वी विल इन्फॉर्म। एंड थैंक यू मच। इफ यू विश यू कैन स्टे, अदरवाइज आप होमवर्क करना होगा तो आप जा सकते। So as you like. Otherwise you can be participate in this discussion. Thank you. Thank you अर्शिया। हम लोग अभी जो दत्ता पाटिल के जो पॉइंट है, दैट इज एक्चुअली द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर सेकंड पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन। क्योंकि दत्ता भाव ने जो पॉइंट उठाया, एक्चुअली ये सारे पॉइंट्स अगर आप देखेंगे आज से करीब 6 महीना पहले जब वानी केम आउट विद दैट रिपोर्ट, और काफी समय लोगों को ये लगा था कि सेक्टर की स्थिति कैसी है, बिकॉज व्हेन वी नेगोशिएट विद डोनर्स वी डोंट आस्क क्वेश्चंस अबाउट द वेजेस। कभी भी आप कोई भी फंडिंग प्रपोजल पे कन्वर्सेशन करते हैं, द डिस्कशन पॉइंट इज नॉट दैट ऑफ के प्रोजेक्ट पे कितना खर्चा हो रहा है, एक्टिविटीज पे कितना खर्चा हो रहा है। कई बार आ जाता है कि अभी आपका सैलरी कितनी मिल रही है, बेनिफिट्स कितने मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली ये दत्ता बाबू आपका पॉइंट जो उठाया, वी वांट टू नो कि जब तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं होती है तो किस तरह की इंश्योरेंस हम दे पाएंगे। हम लोगों ने कोशिश की थी पता लगाने की, जैसे आयुष्मान भारत एक स्कीम है बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन हेल्थ इश्यूज, क्योंकि मोस्टली अगर आप देखेंगे कोविड के टाइम पे जो हमने रियलाइज किया था, लोगों को जो बीमारियां हुई थी, व्हेन दे वर गेटिंग अफेक्टेड बाय कोविड व्हाइल वर्किंग इन द फील्ड, दे वर नॉट एबल टू इवन ट्रीट देमसेल्फ। इतने हाई रेट उस समय हो गए थे, किसी की इंश्योरेंस नहीं थी। सो दिस इज द सेकंड पॉइंट ऑफ आवर पॉइंट, दैट हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हम लोग डिस्कशंस तो बहुत करते हैं, लेकिन इसका एक्शन पॉइंट क्या होना चाहिए, उसके लिए हम आपके विचार जानना चाहेंगे कि कैसे हम लोग मिलकर उसको आगे बढ़ाएं। स्टेट लेवल पे कुछ कन्वर्सेशंस हो रहे थे, नेशनल लेवल पे तो पता नहीं किस तरीके के कन्वर्सेशन चल रहे हैं, लेकिन स्टेट लेवल पे काफी साथियों के साथ हम लोग की बातचीत चल रही थी। So I would invite your suggestions on this issue, which is very important.
Shabir ji, if you want to add anything? Yes, please. जसवंत जी का एक आइडिया आया था उस समय, we need to explore that idea कि जिस तरीके से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स बोलते हैं, उनका जो मेंबरशिप की इंश्योरेंस होती है, क्या वो मॉडल लगाना चाहिए? बिकॉज नाउ इट इज अ टाइम दैट वी शुड स्टार्ट वर्किंग on this issue and we should not leave this issue. So please your suggestions are invited. आपके suggestions हम invite करते हैं कि कैसे इस मुद्दे को address किया जाए. और हमें ये बात भी थोड़ा पब्लिक में लाना चाहिए कि क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करते हैं. जैसा कोविड के टाइम स्लम्स में अगर वैक्सीन के लिए भी जाओ तो कैसे उनको मार के भगा रहे थे. So there are so many societies where CSO वर्कर्स को भगाते हैं when they go for changing behaviors. अपनी लड़कियों को पढ़ाओ या whatever improvements behavior change बताते हैं, तो culturally they are opposed like anything. इसमें कितना उनका जान का खतरा होता है. ये सारे स्टोरीज अगर आप हमें भी मिल जाए तो we can publish it also. Let people know what difficulties these activists face. Any suggestion? कई साथी एकदम चुप हैं. शालिनी मिश्रा, संजय चतुर्वेदी, मिराज मैम, नबीन संधू प्लीज. How to take this issue forward? अब हमें वाणी में भी क्या करना चाहिए? आप सजेस्ट करें तो हम इस चीज को आगे बढ़ाते हैं. पहला प्रश्न ये है कि राज्य स्तर पे इस पे काम होना चाहिए कि केंद्र स्तर पे होना चाहिए? केंद्र स्तर पे अगर होगा तो ऑटोमेटिकली राज्यों को भी वो लागू होगा, इसलिए केंद्र स्तर पर होगा तो अच्छा है. कुछ स्कीम स्टेट लेवल पे भी होती है दत्ता भाऊ? हाँ होती है, लेकिन केंद्र की लेवल पर अगर हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो राज्यों में भी फैल जाएगी ना. अच्छा, मतलब मोस्टली वो सेंट्रल स्कीम्स हैं जो स्टेट में लग रही है, राइट? हाँ, ओके. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सेंट्रल का स्कीम है लेकिन राज्यों का जो योगदान राशि होता नहीं है, इसलिए सेंट्रल का स्कीम भी नहीं इस्तेमाल होता है, मतलब प्रैक्टिस में नहीं आता है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. इसलिए मुझे लगता है कि सेंटर में अगर होगा तो ऑटोमेटिकली उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टेट में करना ही पड़ता है. ये सही स्कीम का क्या हाल है? ESI स्कीम में सही मायने में एनजीओज है ही नहीं, ऐसा मैं बोलूँ तो ठीक है. Either they don't know or they don't want to know. बट एनजीओ वाले स्कीम ले सकते हैं मेंबरशिप? हाँ ले सकते हैं, क्योंकि वो तो काफी सस्ती है हमने ना? कुछ स्टाफ के लिए ग्रेचुइटी स्कीम की है, वो LIC के साथ है. अच्छा. और हमारा ये है स्टाफ का मेडिक्लेम और एक्सीडेंट क्लेम, ये कंपलसरी है हर एक स्टाफ के लिए, वो हम करते हैं. तो तीसरा है कि हमारी स्टाफ कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मतलब किसी को भी 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए तक का अगर इमरजेंसी लोन चाहिए तो वो लोन भी इससे होता है. ये आपने ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस ली है कि हेल्थ इंश्योरेंस ली है? ग्रुप एक्सीडेंट हेल्थ इंश्योरेंस ली है. एक्सीडेंट इंश्योरेंस नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस दोनों, मेडिक्लेम एंड एक्सीडेंट. अच्छा अच्छा, गुड गुड. तो प्राइवेट कंपनी की है? ये प्राइवेट कंपनी की है, गवर्नमेंट कंपनी की भी हो सकती है. अच्छा. आपने जो सर वो भी बहुत सुटेबल है. इनफैक्ट सर थोड़ा सा मैं दीपालिया के बारे में यहाँ पे बताऊंगी. जैसे जी. दत्ता सर ने बोला, सेम तरह की स्कीम्स लाइक हमारी ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस दीपालिया में है, ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, देन ग्रेचुइटी जो सर ने बताया LIC के साथ है. फिर अगर डेथ हो जाती है किसी की तो ESI PF तो है ही है, वो तो आई मीन बेसिक स्कीम्स हैं, वो है ही है वहां पे दीपालिया में. इसके अलावा अगर किसी स्टाफ की सपोज डेथ हो जाती है तो वहां पे एक सिस्टम है कि 1 डे की सैलरी
वॉलंटरली जो है सारा स्टाफ कंट्रीब्यूट करेगा एंड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको मैच करेगी अमाउंट को। तो उससे क्या है कि जो सर्वाइविंग मेंबर्स हैं उनको काफी सपोर्ट मिल जाती है। एंड तीसरी चीज सर मैं जो बोलना चाहूंगी, मैं सेम चीज दोहराऊंगी जो मैंने पिछली मीटिंग पे भी आई थिंक लास्ट ईयर हम लोग डिस्कस किया था, कि अगर हम एक अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन फ्लोट करें जिसके अंदर सोशल वर्कर्स जो हैं उनको मेंबरशिप लेने का प्रावधान हो और उनको हम हेल्प करें परमानेंटली किसी ग्रुप इंश्योरेंस के साथ लिंक होने के लिए, तो क्योंकि कई ऑर्गेनाइजेशंस बहुत छोटी होती हैं तो उनको लगता है कि इतना बड़ा खर्चा हम ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस का या ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस का, ऐसी चीजों का हम कैसे करें। उस तरह से क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स की वजह से कॉस्ट काफी रिड्यूस हो जाती है एंड बेनिफिट भी मिलता है। सो मैं जैसे कि हाईलाइट करती हूँ कुछ फंड्स जो हैं क्रिएट किए गए हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने एक फंड क्रिएट किया हुआ है अपने मेंबर्स के लिए। उन्होंने एक CSPF फंड कहते हैं, विच इज की अगर बाई चांस कोई कंपनी सेक्रेटरी की डेथ हो जाती है तो उनको 10 लाख रुपए उस इंश्योरेंस के से मिलेंगे और उसकी जो फीस जो फंड की जो कंट्रीब्यूशन है बहुत कम कंट्रीब्यूशन है, लाइक कुछ 2500-3000 रुपए का कंट्रीब्यूशन करके उनको ये बेनिफिट मिलता है। सो आई थिंक समथिंग हैज टू बी थॉट ऑन दोज लाइंस कि हाउ irrespective of the size of an organization, how social workers or grassroots workers can be part of an organization or a member or whatever and have this kind of benefit. तो जसवंत जी, दत्ता भाव, आपके हिसाब से मेरे को ये बताइए कि ESI is applicable, no? Yes, ESI is applicable. आप इनफैक्ट सर अगर कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं बनती है, दे कैन ऑलवेज गो फॉर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। तो कभी भी इनफैक्ट सेंटर ने कभी मना नहीं किया है कि अगर किसी के सिर्फ 5 एम्प्लॉइज हैं तो वो PF नहीं ले सकता। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करके PF काट सकते हैं और PF जमा हो सकता है उसके अंदर। इनफैक्ट हाँ, ESI भी इनफैक्ट बेनिफिट जो है डेथ के केसेस के अंदर ये जो EPF का बेनिफिट है बहुत बड़ा बेनिफिट है, बिकॉज कुछ पोर्शन जो है EDLI में जाता है, एक एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस होती है उसमें कुछ पोर्शन कट के जाता है और डेथ केस के अंदर जितना PF का बैलेंस होता है उसका एक फॉर्मूला है, उसके बेसिस के ऊपर एक लमसम अमाउंट जो है सर्वाइविंग मेंबर्स को मिलता है। प्लस छोटी बहुत बड़ी अमाउंट नहीं होती है पेंशन की, जितने भी सर्वाइविंग मेंबर्स होते हैं उनको पेंशन भी मिलती है। तो बेसिकली मेरा कहना ये है एटलीस्ट ESI PF ये तो सभी ऑर्गेनाइजेशंस में होना ही चाहिए और वॉलंटरी अगर ऑर्गेनाइजेशंस कर सकती हैं तो करें, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? क्योंकि मेरे को लगता है कंपनी फॉर्म करना थोड़ा लॉन्ग टर्म हो सकता है। कैन वी come out with some sort of short note कि PF और ESI का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं ग्रासरूट लेवल पे साथियों के साथ? क्योंकि मैं चाहूंगा जो बाकी साथी हैं वो बताएं कि उनके यहाँ क्या सिस्टम है और इन दोनों सिस्टम में से क्या वो एनी सिस्टम इज यूजफुल फॉर देम और नॉट। क्योंकि दीपालिया फिर भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, आई थिंक मेरे को लगता है उनके पास काफी स्टाफ है। दीपालिया के पास 300 स्टाफ है, वैसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई डाउट नहीं है। बट इवन स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस जिनके 20 से भी कम एम्प्लॉइज हैं, काफी सारे लोग इन चीजों के ऊपर अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं। छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन बिगिनिंग में ही शुरू कर सकते हैं अगर, तो ये फिर बड़ा खर्चा लगता नहीं है। उसको जो है वो CTC का पार्ट बना दिया जाता है जिसके अंदर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन उसी CTC में होता है। तो ऑलरेडी आपको पता है कि आपके साल का कितना खर्चा इस चीज के ऊपर होना है, किस तरह से उसकी प्रोविजनिंग करनी है बैलेंस शीट में और कैसे पैसा जमा कराना है उसका। तो और मंथली बेसिस पे PF जमा हो जाता है तो इतना बड़ा मेजर खर्चा फिर नहीं होता है। ग्रेट, थैंक यू मैडम। एनी अदर ऑब्जर्वेशन? क्योंकि हम लोग इस चीज को लेके एक्टिव होने वाले हैं, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो कोविड के समय में जो शिक्षा मिली है हमारे सेक्टर को, यही मिली है कि इफ आवर पीपल एट जो हमारे हाथ हैं सेक्टर के, इफ दे आर नॉट सिक्योर एंड सेफ,
we will not be able to serve the society. आपको क्या लगता है? तो इसको प्रायोरिटी पे करना चाहिए, मेरे को लगता है। क्यों शबीन जी? जी सर, करना चाहिए। मिराज जी कुछ फरमाइए। जो दत्ता भाव पीपीएफ के बारे में बता रहे थे, हाँ। हाउ सुटेबल इट इज फॉर द स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन। वो बता रहे हैं कि जैसे जो कॉस्ट टू कंपनी का कैलकुलेशन करके हमको देखना पड़ेगा कि पीपीएफ का डिडक्शन कितना होता है और ईएसआई का डिडक्शन कितना होता है। एक बार अगर ये एस्टिमेट होता है, देन ओनली वन कैन नेगोशिएट विद द डोनर्स आल्सो। जी जी। और कोई साथी कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं केदारेश्वर चौधरी उड़ीसा से बोल रहा हूँ। सर इसके ऊपर बानी के लेवल पे हमको बहुत काम करना चाहिए। सर इसमें ये जो पीएफ और सीएसआई में जो छोटे छोटे संस्था है, उनका सर बहुत सारे इंफॉर्मेशन में भी सर इंफॉर्मेशन और जो सीटीसी कैलकुलेशन, इसमें भी बहुत सारे खामियां हैं। उसके कारण बहुत सारे एजेंसियां उसको कर नहीं पाते, इम्प्लीमेंट कर नहीं पाते हैं। तो वानी की तरफ से हम उसको स्ट्रेंथन कैसे करें और सेंट्रल लेवल पे कैसे उसको करके सबको उसके साथ जोड़ा जाए और सबके साथ एक सोशल सिक्योरिटी का एक कवर आ जाए, तो उसके ऊपर सर हम काम करना चाहिए। ग्रेट सर, सही है, सुझाव है, बहुत अच्छा। क्योंकि मेरे को लगता है सबसे पहले जैसा आप कह रहे हो कि देयर इज सम लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लोग करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आता कैसे करें। सो वी विल डू दैट इंफॉर्मेशन पैक। थैंक यू सर। यस सर, यस। और कोई साथी? बोलिए शबीन। तो मैं शबीन जी को समर्पित करता हूँ आगे हाथ उनकी तरफ देते हुए कि वो कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे चर्चा को, कि अगर कोई साथियों के पास और कोई प्रश्न है या नहीं है, देन वी कैन डिसाइड अकॉर्डिंगली। बस यही कहना है कि सर तो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कैसे हम लोग वानी कैन हेल्प द ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन। हम तो सोचते रहते हैं, आप डेटा भी भेजिए, सजेशंस भी भेजिए, we can publish it on our website, and we can negotiate with the donors, we can negotiate with the other CSR etc. तो आप भेजेंगे सजेशन, डेटा भेजेंगे, तभी हम लोग कुछ काम करेंगे। आने वाले समय में शबीन जी एक आध हफ्ते में एक हम लोग गूगल फॉर्म बनाएं। ठीक है सर। वो गूगल फॉर्म सारे साथियों को भेजें, जिसमें हम ये बताएं कि ताकि हमको लिखे कि क्या स्टेटस है और उनके यहाँ क्या स्टेटस है और क्या होना चाहिए। बेस्ड ऑन दैट वी विल देन फॉर्मुलेट एन एक्शन प्लान, और इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करेंगे पीएफ और ईएसआई के ऊपर। जो सर एक ऑर्गेनाइजेशन है नापसुई, अगर आप लोगों ने सुना हो, नेशनल, अगर हम इनके साथ कोलैबोरेट करें, बिकॉज इनका जो ऑलरेडी एक मेंबरशिप बेस चल रहा है सोशल वर्कर्स के लिए, तो इनके साथ डिस्कस करके आई थिंक एक प्लान किया जा सकता है। जैसे मैं बोल रही थी कि ग्रुप इंश्योरेंस हो, चाहे वो एम्प्लॉई एक ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रही है और उस इंश्योरेंस का मेंबर वो परमानेंट रहे, क्या हम इन लोगों के साथ किसी तरह से कोलैबोरेट करके डिस्कस करके एक स्कीम बना सकते हैं जिससे कि मैक्सिमम लोगों को फायदा हो? अगर नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्क, हाँ जी, हाँ जी, उसमें ना क्या है कि जो स्कूल ऑफ सोशल वर्क है उनकी एसोसिएशन है ये। ओके। हर्ष जी, इतना डाइवर्स है, स्कूल ऑफ सोशल वर्क के बाहर के भी लोग बोलते हैं। हाँ जी हेमल जी। हाँ जी, नहीं मुझे थोड़ा अभी आया, क्लियर हुआ। मैं ये कहना चाहूंगी इसमें कि ऐसे बहुत सारी स्कीम्स हैं जो हम किसी एक जनरली जो LIC या जो मेडिक्लेम और इन सब चीजों पे डील करते हैं, किसी ऐसे बंदे से हम जरूर बात करके एनजीओस के लिए, क्योंकि हमारे पास काफी सारे लोग आते हैं एनजीओस के लिए अलग अलग ग्रुप इंश्योरेंस का, मेडिक्लेम का स्कीम लेकर के। बट यहाँ सबसे बड़ा इशू ये है कि जैसे दत्ता भाऊ ने कहा कि
स्टाफ की सैलरी ही देने का ऑर्गेनाइजेशन के पास में बहुत बड़ा एक इशू होता है। तो ये सारी स्कीम्स में फंड्स को मैंने, क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ एजेंसी से बात की थी कि ये सारे फंड्स को कॉर्पस तो मैनेज नहीं कर सकता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के पास उतना कॉर्पस होता नहीं है, और कॉर्पस से उतना करना वन टाइम नहीं है, ये रेगुलर होता है। तो उन्होंने एक सजेशन, और कोई प्रोजेक्ट्स भी नहीं देता है। आजकल जो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं वो प्रोजेक्ट्स में कोर स्टाफ तो मेंटेन हो नहीं पाते हैं। जितने भी प्रोजेक्ट्स मिलते हैं या ट्रेनिंग्स मिलती है उसमें स्टाफ, एडमिन और बाकी चीजों में इन्वॉल्वमेंट मींस बजट नहीं होता है। तो ये निकल करके आया था कि कुछ आप अपने प्रोग्राम बेस्ड जो स्टाफ है उनके लिए नहीं, बट जो कोर स्टाफ है उनके लिए ये एजेंसी से जरूर बात करें, और वो कंट्रीब्यूशन जो है वो कंट्रीब्यूशन वॉलेंट्री रखे, जो कि उनकी सैलरी से ही डिडक्ट होगा। तो वो चीज मुझे थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लगा था। फॉर एग्जांपल कि किसी ने कहा था कि आप सोशल वेलफेयर फंड के रूप में अगर 12% डिडक्ट करते हैं या 10% डिडक्ट करते हैं, तो वो जो सैलरी उनकी ऑलरेडी डिसाइड है वो उन्हीं की सैलरी से डिडक्ट होगा। रिमेनिंग 12% जो है वो रिमेनिंग जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मिलने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये क्वेश्चन मार्क हमेशा रहेगा कि अगर स्टाफ के ही अकाउंट से या स्टाफ की ही सैलरी से डिडक्ट होना है तो फिर इसका बेनिफिट वो इंडिविजुअल लेवल पे भी ले सकते हैं ना, उसका एनजीओ के या ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कैसे हम उसको कोलैबोरेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन एक जरूर किसी लीगल टीम से हमें बात करके डिसाइड करना होगा। स्कीम्स तो बहुत सारी है, और स्कीम्स को एप्लीकेबल करने के लिए फंड्स का जो मैचिंग कंट्रीब्यूशन है वो मैचिंग कंट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जा सकता है। एक तरीका ये है कि या तो ऑर्गेनाइजेशन जब प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं तब इन चीजों के लिए निगोशिएट करे डोनर के साथ में, जैसे हमने कुछ टाइम पे किया था, बट वो पहले हो जाता था, अब कोई डोनर इस चीज के लिए एग्री नहीं करता है। दूसरा तरीका ये है कि आपको अपनी लीगल गवर्नेंस को स्ट्रांग रखना है। तो किसी ने मुझे ये सजेस्ट किया था, एक लीगल टीम के बंदे ने, कि वो फिर आपको स्टाफ के ही सैलरी से डिडक्ट करके और आपको उसमें कंप्लायंस में कंप्लीट करना होगा। तो ये जरूर मुझे लगता है ब्रेनस्टॉर्म का इशू है कि ये कैसे मिट आउट किया जा सकता है। थैंक यू विमल जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए क्या हो रहा है कि ग्रासरूट लेवल से लेके इवन नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस तक में भी आजकल जो अपॉइंटमेंट्स हो रही है वो प्रोजेक्ट बेस्ड अपॉइंटमेंट्स हो रही है। 2-4 लोग हो सकता है परमानेंट हो, बाकी सब प्रोजेक्ट वाले होते हैं। और उसमें जो जसवंत जी का जो पॉइंट था वो मेरे को ध्यान आ रहा है कि संस्थाएं बदलते हैं फिर लोग, अगर आप प्रोजेक्ट में यू आर नॉट परमानेंटली इन वन ऑर्गेनाइजेशन, तो उस केस में अगर आप पीएफ लेते हैं तो पीपीएफ अगर जमा हो रहा है तो नई ऑर्गेनाइजेशन में अगर इंसान जाता है तो वो फिर जो प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग इज आल्सो वेरी कॉम्प्लिकेटेड। और तीसरा पॉइंट ये भी आता है इसमें, जो आपका पॉइंट है कि सीटीसी के हिसाब से अगर आप चलते हैं तो जो नेगोशिएशन करने की, देखिए क्या बांग्लादेश में जब वहाँ के एनजीओ नेगोशिएट करते हैं डोनर्स के साथ तो उनका लेवल रहता है कि हमको सरकार से ज्यादा सैलरी होनी चाहिए हमारे स्टाफ की। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो कटिंग कॉस्ट होती है वो सैलरी में डोनर करता है। तो आई थिंक वी नीड टू रेज दीज थिंग्स। ये लेकिन ये जो सैलरी नेगोशिएशन और डोनर्स का बिहेवियर है, दिस इज अ लॉन्ग टर्म स्ट्रगल। लेकिन इमीडिएटली हमको ये देखना है कि किस तरीके से लेवल पे लोगों को सिक्योर कर सके, चाहे वो जैसे सरकार की चाहे वो कोई स्कीम हो। क्योंकि अगर आप देखिए जो कोविड में जिन लोगों की जाने गई थी, इनिशियली वी हैड अ प्रॉब्लम इन अरेंजिंग इवन 50,000 रुपीज पर फैमिली, जो हम आई वॉलंटियर से और गिव इंडिया से लिया था, लेकिन बाद में राज्य सरकारों ने वो देना शुरू कर दिया था। सो आई थिंक it is very important that we should also understand the schemes of the government which can be used by the grassroots activist as a common citizen, चाहे वो आयुष्मान भारत की हो या कोई भी हो। ट्रू नहीं, इसीलिए जो हमने बहुत पहले एक बार बात की थी कि ये सब चीजें तब, क्योंकि ग्रासरूट लेवल के जो ऑर्गेनाइजेशन स्टाफ है उनकी सिक्योरिटी सरकार के लेवल पे बिल्कुल नहीं, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ही डिपेंडेंट वो होते हैं। तो जब ये हमने मिनिस्ट्री की बात की थी, आपको याद होगा, सरकार के गिनती में ही हमारे एम्प्लॉयज नहीं आते हैं, क्योंकि
कहीं ना कहीं बहुत सारी ग्रासरूट लेवल ऑर्गेनाइजेशन उनको टाइम बीइंग रखते हैं या प्रोजेक्ट बेस्ड रखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सरकार से, जैसे पीपीएफ के लिए भी हम बात कर रहे हैं, बहुत बहुत टफ होता है जब उनको हम पीएफ के लिए 5 महीने के लिए या 6 महीने के लिए प्रोजेक्ट है या 1 साल के लिए प्रोजेक्ट है। तो ये सब चीजों में आजकल कोई नहीं रख पा रहा है। सब एक अपॉइंटमेंट लेटर में लिख देते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस उनका वो है, कॉन्ट्रैक्ट है, ये प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद में उनकी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं सफर हमारे सेक्टर के लोग हो रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें इसके साथ में गवर्नमेंट की टीम के साथ भी बात करना चाहिए कि कैसे इस सेक्टर के लोगों को सोशल सिक्योरिटी में इन्वॉल्व करें। जो सरकार की स्कीम है वो तो समहाउ हम, मुझे लगता है एज ए इंडिविजुअल हम इन्वॉल्व कर रहे हैं। जैसे हमने जो वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे जो पैरामेडिकल जो स्टाफ थे उनको करवाया, या हमने उनकी जो टीम को पीपी किट और ये सब दिलवाना था, तो वो इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे हैं। बट ये लॉन्ग टर्म या ये सस्टेन नहीं हो पा रहा है मॉडल, जिसको सस्टेन करने के लिए हमें थोड़ा डायलॉग गवर्नमेंट की एजेंसीज के साथ भी करना चाहिए कि इस सेक्टर के लोग भी है जिन्हें ये सब सोशल सिक्योरिटी की जरूरत है। आप देखिए पेंशन, हमारी सेक्टर में पेंशन की कोई वो ही नहीं है। आज आप या हम 60 इयर्स के बाद में, रिटायर होने के बाद में, मतलब हमारे सेक्टर में रिटायरमेंट तो होता नहीं है, बट हमें भी रिटायरमेंट के बाद में कोई तो अमाउंट लगेगा सर्वाइवल के लिए। तो वो हमारे पास एज ए ओनर भी सिक्योरिटी नहीं है। तो ये हमें जरूर बात करना चाहिए इसके लिए इन फ्यूचर, कि ना हमारे पास में पेंशन का कोई स्कीम है, ना हमारे पास इन फ्यूचर रिटायरमेंट के बाद में या अभी रहते हुए अगर हमें कुछ हो जाता है तो मेडिक्लेम जो हम हमारा पर्सनल किए हैं वही काम आएगा, LIC जो हमने पर्सनल किया है वही काम आएगा। ऑर्गेनाइजेशन में एज ए एम्प्लॉयर, एज ए एम्प्लॉय कोई बेनिफिट उन्हें काम में नहीं आ पा रहा है। शॉर्ट टर्म या छोटा छोटा बेनिफिट हो सकता है। तो ये थोड़ा सा डिस्कस करने का पॉइंट है कि इसका रिसोर्स कैसे जनरेट होगा और किस तरीके से इसको हम सस्टेन करेंगे। एब्सोल्युटली हिमेश जी, आपको याद होगा जब हमने नीति आयोग के साथ कोविड के टाइम जब वो लोग फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन प्रायोरिटी बेसिस पे दे रहे थे, हाँ, तो आपको याद होगा कि NGOs के वर्कर्स को फ्रंट लाइन वर्कर नहीं माना जा रहा था। बिल्कुल हमें चिट्ठी निकलवाई थी हम लोगों ने नीति आयोग से, तो जहां तो वो चिट्ठी के बेसिस पे लग पाए वो लगे, लेकिन कई जगह पे उन्होंने बोला था स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं आया इसलिए नहीं लगेंगे। सो आई थिंक वी हैव टू सी, बिकॉज़ देखिए जो ये क्राइसिस आते हैं, कोविड वाज अ मेजर लर्निंग एक्सरसाइज फॉर ह्यूमन। अब ऐसा ना हो कि हम दुनिया भर को सिखाएं और खुद ही ना सीखें। बिल्कुल द इंटेंशन ऑफ टुडेस कन्वर्सेशन। बिल्कुल। थैंक यू। Any other observation, suggestions? थैंक यू वेरी मच। आप सबने ज्वाइन किया, अपना समय दिया। दो चीजों की लर्निंग है, हमने अवेयरनेस क्रिएट किया। एक तो काइंडली इन्वॉल्व यूथ इन योर प्रोग्राम्स, उनको थोड़ा सा दीजिए इंफॉर्मेशन, थोड़ा ज्वाइन कीजिए, सो दैट दे बिकम अवेयर अबाउट द डेवलपमेंट वर्क एंड द सिविल सोसाइटी। दूसरा, ये हमारा सोशल सिक्योरिटी भूलना नहीं चाहिए। एक्सक्यूजेस तो बहुत आते हैं, प्रॉब्लम्स तो बहुत आते हैं, बट वी हैव टू स्ट्रगल, वी हैव टू गिव प्रोटेक्शन टू आवर एक्टिविस्ट्स। तभी तो काम वो हिम्मत से करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और जो मानी के मेंबर हैं, कृपया करके लिख के भेजें हमको कि किस तरह के वेबिनार्स वो भविष्य में चाहते हैं वानी के द्वारा हो। वी विल ऑर्गेनाइज दोस। किस टॉपिक्स पे होने चाहिए, क्या मुद्दे होने चाहिए, वी विल डू दैट। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। बाय बाय। Thank you, sir. Bye.